In this video, I will be talking about ovaries. So the in humans we females have got two ovaries. Okay, now the length of a average ovary is about 3 centimeter and the breadth is about 1 centimeter. Now within the ovaries there are many. These are all follicles. Now follicles can be found in different stages. Okay, and from there ultimately what we'll get some hormones like estrogen and progesterone, and other than that we also get egg cells, that is the oocytes from there. Okay, now this entire ovary, it has a cover which is called as the capsule. Okay, now let's move on to the functional part. Okay, now we have this hypothalamus. Now from hypothalamus, GnRH, that is gonadotropin releasing hormone, is released. Okay, it will go and act on the anterior pituitary, and in the anterior pituitary we have cells called as the gonadotrophs. Okay, the gonadotrophs will be releasing FSH and LH. FSH means follicular stimulating hormone, so the main function is to stimulate the follicles that are present in the ovary, and luteinizing hormone, okay, which affects the development of the oocyte, and also it mainly helps in the luteal phase. Okay, now from the ovaries we get estrogen, progesterone, and inhibin. Okay, inhibin B, these are the three things that we'll get. We'll move on to the functions of these as well. Okay, first let us see what exactly goes around inside the ovary. Okay, so suppose inside the ovary, what we have is we have oogonium present. Okay, so here we have oogonium present. Now, in case of females, what happens is after the female has taken birth, the total number of oogonium present in her body is actually a fixed number of oogonium is present. Okay, and then what will happen each month? One of these oogonium will be developed, and finally it will develop into a Guyton follicle. From there one of the egg will be released every month. Okay, that happens. Okay, so before puberty only all the females will have oogonium present, that is in the fixed number, which is in the 2n stage. That means it's in the diploid stage. Okay, then this is the pre-puberty stage, and after the puberty hits, what will happen then slowly, what will happen, these oogonium, these are present in the primordial follicles. Okay, so basically this cell is actually the oocyte which will be developed later on, but this particular oocyte is right now in the prophase 1 stage, and it is arrested in this particular stage. Okay, then what happens, this primary follicle will then develop into a, sorry, primordial follicle will develop into a primary follicle. Now when this develops into a primary follicle, again the oocyte present inside is still in the prophase 1, which is diploid, still diploid. Okay, and it is surrounded by a layer of granulosa cells. Then what will happen, since it is a like proliferative stage, so what will happen, FSH will come from the pituitary. Okay, it will go and act on this, and then what will happen, this primary follicle will change into early secondary follicle. Now in early secondary follicle, what happens is the granulosa cells, the layer will become thicker, so it will have more number of granulosa cells, and also the oocyte will develop another layer. Okay, this layer is called as a zona pellucida layer will be developed. Okay, okay, now this process is also helped by another hormone. Luteinizing hormone will also help in this particular process. Then what will happen, this early secondary follicle will then change into a secondary follicle. Okay, and for this development, like from change to early to secondary follicle, what will happen, again there will be help coming from the luteinizing hormone and the follicular stimulating hormone, which will stimulate the process. Okay, now in this you can see these blue spots. What are these? Now these are the early stages of development of an antrum. Antrum means it's a fluid-filled cavity. So what will happen? These granulosa cells will start secreting a fluid, which will start accumulating inside. Okay, this is the secondary follicle. Now within the secondary follicle, another thing is happening. That is, the oocyte, which was earlier present in the diploid stage, will now divide. Okay, and will become the N. Like it will become haploid. So the meiosis 2 is going on inside. Okay. Next, what will happen? Then, in the next stage, what will happen? This secondary follicle will now develop into Griffin follicle. Now, this particular stage is also helped by the FSH and LH. Okay, positive signal from both FSH and LH will help this to develop from the secondary follicle into Griffin follicle. Okay, now when this changes into Griffin follicle, what will happen? This Griffin follicle will now have a the egg. Now this egg cell is surrounded by a layer of cells called as corona radiata, and also we have the antrum, which is filled with fluid.
ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ग्राफियन follicle. Okay, then what will happen? This graphene follicle, it will get a huge amount of LH. So this is called as LH surge. Now, because of this huge amount of LH coming from the pituitary, what will happen? This graphene follicle will release the oocyte. Okay, so basically, what will happen? Ovulation will take place and the egg will be released. So whatever is remaining is there that will convert into a corpus luteum. Okay, and okay, and later on, if in case there is no fertilization, then in that particular case, this corpus luteum will be converted into corpus albicans. So this was the effect of LH and FSH on the entire process that will go on inside the ovary, so that the oocyte is released. Okay. Now let's see what is produced from there. Now you see from the primary follicle, from the early secondary follicle, from the secondary follicle, and from the Graafian follicle, we are getting a hormone which is called as estrogen. So all these stages will release this particular hormone called estrogen. ठीक है, estrogen का काम क्या है? Estrogen will help in this particular development. It will also help in this particular development of the follicles within the ovary. Now we have this corpus luteum. Now what will happen with this corpus luteum? Now जब egg release हो जाएगा, when the egg is released out of the Graafian follicle, the rest of the part will convert into corpus luteum, and corpus luteum produces a hormone, a major hormone called as progesterone. What is the function of progesterone? The main function of progesterone is to maintain pregnancy. Now, if the pregnancy is to be maintained, then progesterone is required. Now, suppose अगर fertilization नहीं हुआ, ठीक है? If there is no fertilization, then what will happen? अगर fertilization नहीं हुआ, then in that particular case, this corpus luteum will be converted into corpus albicans. Now, corpus albicans does not produce progesterone, and therefore, what will happen? क्योंकि pregnancy नहीं हुआ है, so there is no progesterone, so there is no risk. Okay, but in case pregnancy हुआ है, in that case corpus albicans will not be made, and the corpus luteum will keep on secreting progesterone until and unless the placenta has been developed, because placenta is the major source of progesterone. Okay, till the time placenta has not been developed, तब तक के लिए corpus luteum will be the one which will be secreting progesterone, so that the baby is maintained within the uterus. ठीक है, अच्छा, so this entire thing has been divided into three phases. क्या क्या phase है? फॉलिक्यूलर फेज है पहला वाला फेज, उसके बाद ओव्यूलेशन फेज, उसके बाद ल्यूटियल फेज. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फॉलिक्यूलर फेज. फॉलिक्यूलर फेज मतलब वो वाला फेज जहां पे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, ओके, सो इट विल स्टार्ट एट द फर्स्ट डे एंड इट विल एंड एट द 14th डे. अच्छा, इसमें क्या क्या होता है फॉलिकुलर स्टेज में? प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप हो जाएगा ग्राफिन फॉलिकल में, विच इज सपोर्टेड बाय एफएसएच एंड एलएच. ठीक है, माइटोसिस होगा ग्रेन्युलोसल सेल्स में. माइटोसिस, ओके, मियोसिस नहीं, माइटोसिस. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेन्युलोसिस सेल्स, मतलब यहाँ जो येलो सेल्स है उनका माइटोसिस हो रहा है, तो ये नंबर में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड सेल डिवीजन हो रहा है. ठीक है, लेकिन ये गैमेट सेल्स नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे. साथ में क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन प्रोडक्शन हो रहा है. यू कैन सी ऑल द स्टेजेस आर प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन. और क्या हो रहा है? फॉलिक्यूलर फ्लूइड प्रोडक्शन हो रही है. ये जो ब्लू वाला मैंने ड्रॉ किया वो वाला. ठीक है, फॉलिक्यूलर फ्लूइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. और क्या हो रहा है? जो प्राइमरी oocyte था वो भी सेकेंडरी oocyte बन गया, क्योंकि वो डिवीजन हो गया, 2n से n हो गया. ठीक है, नेक्स्ट कम्स दी ओव्यूलेशन फेज. ओव्यूलेशन फेज में क्या होगा? ग्राफिन फॉलिकल से जो एग है वो निकल जाएगा. तो ओव्यूलेशन फेज कब होता है? जब एलएस सर्ज होता है. इट स्टार्ट्स फॉर ओनली 1 डे, 14 से लेकर के 15th डे, बेसिकली 1 डे का होता है ये. एंड फाइनली वी हैव द लूटियल फेज. लूटियल फेज में क्या होता है? लूटियल फेज इज द लास्ट फेज. इसमें क्या होगा? जो ग्राफिन फॉलिकल है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम, एंड देन कॉर्पस लूटियम secretes progesterone, so the amount of progesterone will increase in the body. एंड ये होता है 15th डे से लेकर के 28th डे तक ये चलता है. ठीक है, सो दिस वाज द ovarian changes, in the like ovarian changes due to different hormones and उनका प्रोडक्शन. तो यहाँ पे किसका इफेक्ट है? एलएच और एफएसएच का. ठीक है, और प्रोडक्शन क्या क्या हो रहा है? ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रोडक्शन. एग्जैक्टली ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कैसे होता है? देखो, हाँ, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन ग्रेन्युलोसा सेल में होगा. ये एलएच आया, वो क्या करेगा? ये हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए. देन एंड्रोजन विल एंटर इनटू द ग्रेन्युलोसा सेल. देन वहां पे जाकर के क्या होगा? ग्रेन्युलोसा सेल के अंदर ये जो एंड्रोजन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन. ये कौन ट्रिगर करेगा? एफएसएच विल ट्रिगर, एंड देयरफॉर दिस इज हाउ ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड विद इन द ग्रेन्युलोसा सेल्स.
Okay, so next let us see this particular chart and study this particular chart. Okay, so what do we see out here? यहाँ पे देखो, हाँ, चार्ट में we'll see this hormone level. हार्मोन लेवल में फर्स्ट लेट्स सी एफएसएच. एफएसएच का लेवल, अच्छा एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो वो फॉलिकल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. तो इसका मतलब फॉलिकुलर स्टेज फेज जब तक रहेगा तब तक क्या होगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा. ठीक है, एफएसएच विल इंक्रीज बिकॉज यहाँ पे इसकी जरूरत है, बिकॉज द फॉलिकल्स आर ग्रोइंग. बट जब ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा लाइक टुवर्ड्स द 14th डे, ग्राफिन फॉलिकल जब तक बन जाएगा तब तक उसका काम खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो वो कम हो जाएगा. बट देयर इज अ स्लाइट पीक आएगा थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एलएच भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, लाइक क्योंकि ओव्यूलेशन का टाइम है. तो थोड़ा सा पीक आएगा, फिर उसके बाद वो एकदम कम हो जाएगा. ठीक है, देन लेट्स सी एलएच. नाउ एलएच क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो इनिशियल के स्टेज में मतलब फॉलिकुलर फेज में वो कांस्टेंट रहता है, लाइक स्ट्रेट लाइन, एज यू कैन सी द पिंक लाइन. फिर वो क्या हो जाएगा, अचानक से इंक्रीज हो जाएगा. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल एच सर्ज. ये सर्ज जब होता है देन ओनली ओव्यूलेशन विल अकर. ठीक है, ओव्यूलेशन डिपेंडेंट होता है इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्ज के ऊपर. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होगा देन ओनली ओव्यूलेशन विल टेक प्लेस एंड देन इट विल डाई ऑफ. ठीक है, कम हो जाएगा एकदम. उसके बाद ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस होता है? ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कौन करेगा? ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन करता है फॉलिक्यूलर सेल्स का, ग्रैन्युलोसर सेल्स करेगा. तो ग्रैन्युलोसर सेल्स का नंबर जितना बढ़ेगा ईस्ट्रोजन भी उतना ही बढ़ेगा. तो सिमिलरली यू कैन सी कि ये जो ग्राफ है ग्रे वाला वो इंक्रीज होता है फॉलिकुलर स्टेज में, फिर वो डिक्रीज हो जाएगा, देन ल्यूटियल फेज में थोड़ा सा और इंक्रीज होकर ये गिर जाएगा. ठीक है, एंड इन केस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, अगेन प्रोजेस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम कब बनेगा? ग्राइफिन फॉलिकल बन के खत्म हो जाएगा उसके बाद. सो द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन इनिशियली इज वेरी वेरी लो, बट जैसे ही ल्यूटियल फेज आया तो इस टाइम पे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्पस लूटियम ये क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, देन इन द नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे ओवेरियन साइकिल दिखाया है. फॉलिकुलर स्टेज में फॉलिकल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, देन द ओवा इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड देन इट इज गोइंग टू ल्यूटियल फेज. देन देयर इज अ यूटेराइन साइकिल. यूटेराइन साइकिल में मेंसेस, मेंसेस मतलब द टाइम व्हेन दिस मेंस्ट्रुएशन गोइंग ऑन. प्रोलिफरेटिव स्टेज मतलब वो वाला स्टेज जब जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो डेवलप हो रहा है सो दैट द बेबी कैन ग्रो इनसाइड. एंड सेक्रेटरी फेज मतलब वो वाला फेज जिसमें इट इज सिक्रेटिंग all the different kind of uterine hormone, एकदम कुछ नहीं बन जाता है. दिस इज द परफेक्ट आइडियल कंडीशन व्हेन इम्प्लांटेशन कैन अकर. ठीक है, एक बेबी यहाँ पे अब ग्रो हो सकता है, लाइक इट्स फुल्ली रेडी नाउ. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द ओवेरियन साइकिल. तो हमने देख लिया, अब ये हो गया हमारा यूटराइन साइकिल कि यूट्रस के अंदर क्या होता है. देखो, हाँ, यूट्रस के अंदर 3 फेज होता है. तो मैंने यहाँ पे अलग अलग लाइक एक ही यूटरस का 3 पोर्शन लेके मैंने अलग अलग डायग्राम बनाए. सो विल सी दी एक एक करके पार्ट देखेंगे. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, तो हमारा जो यूटरस है उसमें 2 लेयर होता है. मायोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम होता है. मायोमेट्रियम मीन्स ये वाला पोर्शन जो बाहर की तरफ होता है. मेनली इट्स मेड अप ऑफ मसल्स, यूटेराइन मसल्स. और इन मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से द बेबी विल कम आउट ड्यूरिंग पार्टुलेशन. ठीक है, अच्छा, तो ये जो एंडोमेट्रियम है इट हैज गॉट 2 पार्ट्स. एक है कॉर्पस स्ट्रेटम और दूसरा है सॉरी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस एंड स्ट्रेटम बेसिलिस. फंक्शनैलिस को मैंने येलो में दिखाया है और बेसिलिस को मैंने पिंक में दिखाया है. ठीक है, एंड डार्क पिंक मतलब वो मायोमेट्रियम वाला पोर्शन. अच्छा, ओके, सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज. मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगा. बेसिकली द ब्लड विल कम आउट अलोंग विद ऑल द एक्सेस टिश्यू जो नहीं चाहिए. तो ये शेडिंग फेज है. ठीक है, शेडिंग किस चीज का होगा? सिर्फ स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का शेडिंग होता है. ठीक है, स्ट्रेटम बेसिलिस का शेडिंग नहीं होता है. एंड इट अकर्स टू डे 1 से लेकर के डे 6 तक ये होता है. सो आई मेड दिस डायग्राम आउट हियर. एंड ये सब कुछ यहाँ से सिक्रीट होके इट विल कम आउट. ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोलिफरेटिव स्टेज. ओके वेट, ओके, नेक्स्ट आता है प्रोलिफरेटिव स्टेज. प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या होगा? प्रोलिफरेटिव स्टेज में आई हैव शोड इट हियर. ठीक है, यहाँ पे दिखाया. इट इज फ्रॉम डे 6 टू डे 14. प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या होगा? देयर विल बी जनरेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनैलिस. क्योंकि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस यहाँ पे जो निकल गया था पहले वाले स्टेज पे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वो अभी डेवलप होगा. ठीक है, एंजियोजेनेसिस होगा. यहाँ पे ब्लड वेसल्स, बहुत सारा कॉइल्ड कॉइल्ड ऐसे ब्लड वेसल बनता है इसमें. ठीक है, जितना ज्यादा कॉइल्ड होगा उतना ज्यादा ब्लड मिलेगा, देयरफॉर कॉइल्ड. देन वहाँ पे यूटेराइन ग्लैंड्स भी बनेंगे जो गोल गोल बना है. दिस आर द यूटेराइन ग्लैंड्स, इनका भी डेवलपमेंट होगा. एंड देयर विल बी अ वेरी थिन सर्वाइकल म्यूकस.
अच्छा, ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स में थिन म्यूकस होगा। थिन म्यूकस से क्या हो जाएगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ से दी स्पर्म्स कैन पास वेरी इजीली थ्रू द थिन सर्वाइकल म्यूकस एंड फर्टिलाइजेशन होने के चांस। ओके, देन फाइनली कम्स द लास्ट स्टेज विच इज द सेक्रेटरी फेज। ये 15th डे से लेकर के 28th डे तक चलता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो स्ट्रेटनम फंक्शनैलिस है वो और भी ज्यादा थिक हो जाएगा, दिस येलो पार्ट इज आल्सो थिक, है ना। एंड जो एंजियोजेनेसिस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो ब्लड वेसल है वो और भी ज्यादा मोटा मोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा, ठीक है, कुछ ज्यादा ज्यादा ब्लड मिले अगर इम्प्लांटेशन हुआ तो। एंड देयर बी अ लॉट ऑफ यूटेराइन ग्लैंड्स, एंड यूटेराइन ग्लैंड्स क्या करेगा, ये ना सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, न्यूट्रिएंट सिक्रीट करेगा। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ जाएगा, यहीं पे जाएगा। एंड द न्यूट्रिएंट जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि यू नो कि एक फ्लूइड में बेबी ग्रो होता है ना, एम्ब्रियो ग्रो होता है, तो वो वाला जो फ्लूइड है वो कौन बनाएगा, यूटेराइन ग्लैंड्स बनाएगा, ठीक है। एंड उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होगा सो दैट द बेबी कैन ग्रो प्रॉपर्ली। एंड अब देखो ये फ्लूइड है तो हो सकता है निकल जाए, तो यू डोंट वांट इट टू कम आउट, सो यहाँ पे थिक सर्वाइकल म्यूकस प्लग बन जाएगा सो दैट नथिंग कैन गो इन एंड नथिंग कैन गो आउट टिल द मदर इज प्रेग्नेंट विद द बेबी, ठीक है। नाउ ये जो बेबी है सपोज ग्रो हो रहा है, दीज आर ऑल द यूटेराइन चेंजेस दैट विल हैपन इन द बॉडी, ठीक है। अब देखो, हाँ, अभी बेबी ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, होते होते फाइनली एक टाइम आएगा ना पार्टुरेशन के टाइम पे। नाउ वी हैव टू स्टडी की पार्टुरेशन के टाइम पे कैसा कैसा हार्मोन काम करता है, ओके। फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन द मदर। नाउ इनसाइड द मदर्स बॉडी वी हैव हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस होता है मदर के पास। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस में से सिक्रीट होगा, क्या सिक्रीट होगा, यहाँ से हार्मोन सिक्रीट होगा, ओके, GnRH। Okay, so hypothalamus releases GnRH. Now this GnRH will go into posterior pituitary. Now posterior pituitary में जाने के बाद what will happen, this from this posterior pituitary again hormones will be released, ठीक है, which will go and activate the ovary. And then what will happen, this ovary will go and secrete oxytocin. Okay, now what is the function of oxytocin? Oxytocin क्या करेगा? Now oxytocin जाएगा और ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि ऑक्सीटोसिन एवे रिलीज नहीं होता है, इट टेक्स सर्टेन काइंड ऑफ सिग्नल, देन ओनली द ऑक्सीटोसिन विल बी रिलीज। एंड कौन से कंडीशन में रिलीज होगा, आई विल कम बैक टू इट। अच्छा, ठीक है, पहले देखो और क्या क्या होता है। नाउ इन द मदर्स बॉडी वी ऑल्सो हैव अनदर ऑर्गन कॉल्ड एज प्लेसेंटा, जो कि सिर्फ प्रेजेंट होता है किस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे। बाकी टाइम पे ये जो पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऑर्गन है, ये नहीं रहता है, ठीक है। नाउ प्लेसेंटा से क्या क्या रिलीज होता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी फंक्शन। अगर तुम देखो प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन होता है कि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। तो इसका मतलब अगर प्रेगनेंसी मेंटेन करना है तो प्रोजेस्टेरॉन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईस्ट्रोजन भी क्या करेगा, वो भी सेम काम करता है, वो भी इसमें हेल्प करेगा, तो थोड़ा कम बट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या करता है, वो प्रेगनेंसी मेंटेन करता नहीं है, रैदर इट गोज एंड हेल्प्स इन पार्ट्यूरेशन। सो बेसिकली ये पार्ट्यूरेशन कराएगा, इट प्रोस्टाग्लैंडिन डजंट वांट द वुमन टू बी प्रेग्नेंट एनीमोर, ठीक है, ये वो काम करता है, ठीक है। नाउ विल सी कि ये हार्मोन्स एक्टिवेट कब होगा। नाउ ये जो मदर है इसके बॉडी के अंदर देयर इज अ बेबी, राइट, शी इज प्रेग्नेंट, तो देयर इज अ बेबी। नाउ उस बेबी के पास हाइपोथैलेमस है, उस बेबी के पास भी पिट्यूटरी है, उस बेबी के पास एड्रिनल है, और उस बेबी के और वो अपना हार्मोन रिलीज करता है। नाउ व्हाट हैपेंस, there is some kind of stress that the baby feels. Another question is what kind of stress. अब देखो, हाँ, when the baby is growing and it's almost mature, तो फीमेल के बॉडी के अंदर इट डज नॉट हैव इनफ स्पेस, तो दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेस। इस तरीके से देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट द बेबी विल स्टार्ट फीलिंग। तो ये स्ट्रेस सिग्नल जाएगा कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देगा, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी किसको सिग्नल देगा, एड्रिनल को। एंड यू पीपल नो कि यहाँ से क्या क्या रिलीज होगा, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। एंड देन एड्रिनल से सिक्रीट होगा क्या, कॉर्टिसोल, ठीक है। सो बेबी इज रिलीजिंग कॉर्टिसोल इन इट्स बॉडी, ठीक है। एंड कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, तो ये तब रिलीज होता है व्हेन द बेबी इज हैविंग स्ट्रेस। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो कॉर्टिसोल बेबी ने रिलीज किया अपने बॉडी में, क्योंकि बॉडी जो बेबी इज कनेक्टेड टू द मदर्स बॉडी, राइट, थ्रू थ्रू द प्लेसेंटा ये मदर्स के ब्लड में चला जाएगा, एंड फ्रॉम दैट इट विल गो एंड गिव सिग्नल टू द मदर्स ब्रेन,
ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन, ये मदर का ब्रेन अब एक्टिवेट हो गया है ना बेबी के कॉर्टिसोल की वजह से. सो द मदर विल नाउ अंडरस्टैंड कि अभी द बेबी इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड द बेबी डजंट वांट टू स्टे इनसाइड मी. The mother will know, and and this hypothalamus will give signal to the pituitary, and the pituitary will give to the ovary, and then oxytocin will be released. Oxytocin release होगा तो क्या हो जाएगा? Oxytocin release हो गया तो uterine contraction will start to happen. ठीक है. इसके अलावा what is happening? अच्छा, इसके अलावा again, okay, we have this placenta. Now in case of female's body they have this particular placenta. Now जैसे ही ये cortisol release हो गया, this will also have an effect on the placenta, but ये effect negative है. तो जैसे ही नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा प्लेसेंटा के ऊपर तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन दैट वाज प्रोड्यूस्ड विल डिक्रीज, द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन दैट वाज अर्लियर प्रोड्यूस्ड विल आल्सो बी डिक्रीज्ड, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन दैट वाज प्रोड्यूस्ड विल इंक्रीज. तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी जो है वो अब और मेंटेन नहीं होगा और पार्ट्यूरेशन हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन, ये ना यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है. ठीक है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन विल आल्सो एक्सर्ट इट्स इफेक्ट. ठीक है, सो दैट और भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो. ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, देन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विल हैपन एंड देयरफॉर द पार्ट्यूरेशन विल हैपन एंड द बेबी विल कम आउट ऑफ द बॉडी. ओके, so this was all about ovaries.